Okay, friends, once again, welcome back and very good evening to everybody. I hope you all are safe, your family members, your relative, your parents, your friends, your relative, all are safe and you are enjoying this new era, this new way of learning. Once again, friends, I am going to tell you that this chapter is very important. This is the very basic chapter of the physics. We are discussing motion in a one dimension, so we can say motion in a straight line, one dimensional motion. In this chapter, what we had learned so far, so we had discussed the concept of the very first, what is motion. Then after we discussed the path length and the displacement, we also discussed the average velocity and average speed. Then after we discussed the instantaneous velocity and instantaneous speed, we discussed that the slope of the position versus time graph gives us the average velocity and the slope of the velocity versus time graph gives us the average acceleration. But if you draw tangent to the position versus time graph, if we draw the tangent in the position versus time graph, then the slope of the tangential line will give us the instantaneous velocity. And the same way, in the velocity versus time graph, if we find the slope of the tangent, it will get you the instantaneous acceleration. Mathematically, average speed delta v by delta t, average speed delta x upon delta t, and the instantaneous speed is equals to dx upon dt. Average acceleration delta v by delta t, but instantaneous acceleration dv by dt. So differentiation terms is there to find the instantaneous velocity or acceleration. Then after we discuss the how to find the how to find the information regarding the acceleration, whether the acceleration is positive, zero or negative, that also we can find from the position versus time graph. After that, we had discussed the equation for the constant accelerated motion. So once again, I am going to remind you that 5 equations that we had derived for the constant accelerated motion. So Parva, you want to ask anything? Parva Shah? Yes, sir. एक डाउट હતો क्वेश्चन आंसर માં. Okay, बोलो. સર ક્વેશ્ચન નંબર 21 માં Okay. એમાં જે ઇક્વેશન પહેલાનો જે પોઈન્ટ છે ને બાય પુટિંગ વાળો, એમાં કાઇનેમેટિક ઇક્વેશન એનો મતલબ શું સર? काइनेमेटिक्स का मतलब मोशन के साथ जो लिंक होता है उसको काइनेमेटिक्स बोलते हैं. तो आपको ओके बोल सकते हैं कि डिराइव द काइनेमेटिक्स इक्वेशन फॉर द कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन, तो भी वही आपको करना है. ओके सर. ओके सर so just a minute Kosto, just let me write down the equations for the constant acceleration. So what are the equation was v equals to v naught plus at. Second one, displacement x or d is equals to vot plus half at square. Third one, v square minus v naught square is equals to 2ad. Fourth one, d is equal v plus v naught by 2 into t. And the fifth is a totally different one. It is the distance traveled in particularly nth second. A by 2 into. So these are the basic equations. और ये इक्वेशन के हर एक इक्वेशन के कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, वो भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, उसका स्क्रीनशॉट भी मैंने भेजा है. आपको ये याद रखना है कि अगर कोई एक्सेलरेटेड मोशन है मतलब वेलोसिटी बढ़ती जा रही है. अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो आपको ये याद रखना है कि आपको एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेना है.
बट अगर रिटार्डेशन है, अगर रिटार्डेशन है मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो आपको एक्सेलरेशन नेगेटिव लेना है। बट एक जो एग्जाम्पल था, कुछ एग्जाम्पल नंबर 5, उसमें हमने एक्सेलरेशन नेगेटिव लिया था, दो द फ्री फॉल वाज देयर, but still we had considered the acceleration negative because in that particular example it was mentioned कि अब डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लेके सॉल्व करना है। इसके वजह से हमने वहां पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेने के बदले नेगेटिव लिया था। अदरवाइज इन ऑल द क्वेश्चंस आपको ऐसा सोचना है कि अगर स्पीड बढ़ती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेना है, अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो आपको एक्सेलरेशन नेगेटिव लेना है। तो इस हिसाब से सॉल्व करना है। एक एक्सेप्शनल केस था, वो फ्री फॉल वाला एक क्वेश्चन था जो थियरी में भी है, न्यूमेरिकल भी में है। वैसे फ्री फॉल में तो एक्चुअल में हमको एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेना चाहिए बिकॉज वेलोसिटी स्पीड इंक्रीज होती है, बट वहां पे हम ऐसा सोच के चलते हैं, वहां पे हम ऐसा मान के चलते हैं कि अब जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है वो नेगेटिव है, तो उसके हिसाब से वहां पे सब कुछ नेगेटिव करके सॉल्व किया हुआ है। दैट इज द ओनली क्वेश्चन इन विच वी हैड डन लाइक दिस साइन कन्वेंशनल, अदरवाइज वी विल यूज दिस फैक्ट। ओके, चलो कौस्तव क्या पूछना है बोलो। सर फ्री फॉल के केस में एक्सेलरेशन और वो वेलोसिटी नेगेटिव ही लेंगे ना हर एक केस में? हाँ, वो नहीं, हर एक केस में नहीं, ओनली ओनली एग्जांपल नंबर 5 में। अगर मेंशन किया हो कि नेगेटिव लेना है तब तो लेना ही हाँ पड़ेगा। हाँ, तो लेना पड़ेगा, बट ऐसे क्वेश्चन हो, कैसे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये खाली एक एग्जांपल नंबर 5 में ही ऐसा करना है। ओके ओके। ओके, सो विल सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस। अच्छा, लास्ट में कौन आया अभी? प्रियांशु आ गया? हाँ सर। क्यों लेट आया? सर भूल गया था कि लेक्चर में। अच्छा, ओके, सर बोलो। यानी अगर आप एग्जाम में पूछो तो हमें नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव? अगर आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछते हैं कि डिस्कस द मोशन विद द फ्री फॉल, तो वहां पे हम एक आर्ग्यूमेंट कर देंगे कि राइट नाउ अज्यूमिंग द डाउनवर्ड डायरेक्शन एज अ नेगेटिव डायरेक्शन, और सब कुछ हम ऐसे ही जैसे मैंने नोट्स में लिखा हुआ है वैसे ही कर देंगे। बट अगर कोई एमसीक्यू पूछते हैं, कोई न्यूमेरिकल पूछते हैं, तो हम, मैंने जो बताया वही हम सॉल्व करेंगे। ओके, ओके मतलब एक ही क्वेश्चन में हमको नेगेटिव साइन कन्वर्ट करेंगे। ओके ओके चलो कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। लास्ट में हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज उसी ट्रैक पे कुछ ज्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो लेट मी शेयर द न्यूमेरिकल्स नोट्स फॉर दिस चैप्टर। यप, तो ये हमने इलस्ट्रेशन नंबर 4 कर दिया था, इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी हमने कर दिया था, 6 बाकी है, 7th हमने कर दिया था, 8th हमने कर दिया था, 9th इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। और एक्सरसाइज में अगर कोई कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन है तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट। अच्छा, मैंने ये एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन करवाया कि बाकी है? बाकी है सर। ओके, सो फ्रेंड्स कम टू द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग ये क्वेश्चन 6 को पढ़ो, पढ़ने की ट्राई करो। चलो friends, अभी आपको क्या दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 6। आर यू एबल टू सी द ओनली द क्वेश्चन ऑफ द 6, क्वेश्चन नंबर 6? यस यस सर। अच्छा, सर इसमें वो स्टॉपिंग डिस्टेंस का इक्वेशन यूज करेंगे। देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। वो कर सकते हैं, उसके बिना भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन ट्राई करते हैं क्या लिखा हुआ है। अ कार मूविंग along a straight highway with the speed of 126 किलोमीटर पर आवर। मतलब हमको कार का इनिशियल स्पीड दिया हुआ है, कार का इनिशियल स्पीड दिया हुआ है। अच्छा फ्रेंड्स, एम आई ऑडिएबल टू यू ऑल?
मेरी आवाज अब Yes, sir. अच्छा, अगर प्रेरक आपको आवाज नहीं आ रही है तो वहां से प्रॉब्लम है। प्रेरक तो आप वहां पे आपके वहां से प्रॉब्लम है। अकॉर्डिंग टू दैट आप ऐसी जगह पे बैठोगे जहां पे नेट आपका प्रॉपर आ रहा हो। इनिशियल वेलोसिटी 126 किलोमीटर पर आवर है, पर प्रॉब्लम ऐसा है कि जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो हमको मीटर में दिया हुआ है। मतलब सबसे पहले ये किलोमीटर पर आवर जो है ना, उसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो 126 किलोमीटर माने 10⁻³ मीटर एंड आवर माने 3600। इज दैट ओके? तो फ्रेंड्स, आप हमेशा याद रखना कि अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप 5/8 से मल्टीप्लाई कर दो। 5/8 से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज 1000/3600 अगर आप सोचते हो तो क्या होता है? 18 ना सर? हाँ, 5/18। 18. हाँ 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज 1000/3600 विल गेट यू द 5/18। ओके, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वो मिल जाएगा मीटर पर सेकंड में। चलो अब क्या आएगा इसका? 18 7 126, 7 5 35। Is it okay? Yes. Yes, sir. चलो। 126 किलोमीटर 35 मीटर ही होगा। अरे नहीं भैया, 126 किलोमीटर कैसे 35 मीटर होगा यार? 126 किलोमीटर आप क्या सोच रहे हो भैया? इट इज दिस मच मीटर। ये पूरा यूनिट चेंज किया ना, किलोमीटर पर आवर है ना, तो उसको सेकंड में भी कन्वर्ट किया ना। अरे हाँ सॉरी सर। ओ इज इट ओके? यस सर। अच्छा चलो, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है। अब क्वेश्चन सोचते हैं कि क्या है। is with the speed of 126 kilometer per hour is brought to stop within the distance of 200 मीटर। मतलब 200 डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो स्टॉप हो जाता है। चलो, स्टॉप हो जाता है इसका मतलब ऐसा हुआ कि फाइनल वेलोसिटी क्या लेंगे? 0. वेरी गुड, फाइनल वेलोसिटी हम 0 लेंगे। और कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ? 200 मीटर। 100. ओके, तो क्वेश्चन ऐसा है, व्हाट इज द रिटार्डेशन। मतलब पहली बात तो ये कि रिटार्डेशन फाइंड करना है, और दूसरी बात ये कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू बी स्टॉप, मतलब स्टॉप होने में कितना टाइम लगेगा। दो चीज फाइंड करना है। चलो, पहला जो केस है उसमें मुझे रिटार्डेशन फाइंड करना है। तो केस नंबर 1 में टाइम को पिक्चर में टाइम को नहीं लाना है। v स्क्वायर माइनस v फाइनल नॉट वेलोसिटी स्क्वायर। है, डिस्टेंस भी है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस v नॉट v स्क्वायर square इज इक्वल टू 2ad। 2AD. फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल जो है वो 35 है, वेलोसिटी जो है वो 35 है, उसका स्क्वायर 2। एक्सेलरेशन मतलब फाइंड करना है और डिस्टेंस दिया हुआ है 200। तो अगर आप एक्सेलरेशन फाइंड करोगे तो आपको मिल जाएगा माइनस, अच्छा माइनस में मिलेगा। तो माइनस में मिलना चाहिए, वो ऑब्वियस है, पूछो क्यों? रिटार्डेशन हो रहा है इसलिए। हाँ, रिटार्डेशन हो रहा है इसलिए, राइट। तो वापस समझाओगे एक बार, पता नहीं चले। क्या क्या अरे चीज वापस समझाऊं? ये v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू 2ad से। हाँ, वो फॉर्मूला अप्लाई किया और उसके अंदर ये फॉर्मूला आपको पता है, हाँ और उसके अंदर मैंने फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 डाला, ओके वेलोसिटी जो था वो डाला, ओके डिस्टेंस जो था वो डाला। ओके, ओके और एक्सेलरेशन को सब जगह इक्वेशन मैंने बना दिया। तो ओके -35 × 35 डिवाइड बाय 400, 200 × 2 माने 400। चलो, इसका कैलकुलेशन करके मुझे आंसर तो क्या आ रहा है? 3.0625. 3.062। 3.0625। ओके फाइन, तो ये मिल गया मुझे एक्सेलरेशन।
बट क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि रिटार्डेशन क्या है, तो आप क्या आंसर लिखोगे? सेम आएगा सर। हाँ सर, -3 नहीं भैया, नहीं नहीं, back to the अगर रिटार्डेशन पूछा है तो फिर नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? yes sir. सर Yes sir. वो रिटार्डेशन वर्ड itself is indicating it is a negative. So there will not be requirement of the to write the negative sign over there. Is that clear to you? Yes sir. तो यहाँ पे मार्क्स काट सकते हैं आपके अगर वहां पे नेगेटिव लिखा तो। सर अगर समझ एक्स, हाँ मैं बोलूँ, सुनो मेरी बात। अगर एक्सेलरेशन पूछते ना तो हम -3.062 लिखते। अगर रिटार्डेशन पूछा हुआ है तो +3.62 लिखेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? ओके सर, मतलब अगर एक्सेलरेशन माइनस में है, रिटार्डेशन पूछा है तो प्लस में कन्वर्ट। हाँ परफेक्ट। वो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, उसका मतलब ही ऐसा हुआ कि वो रिटार्डेशन है। तो रिटार्डेशन तो को माइनस नहीं कह सकते, रिटार्डेशन तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। इज इट? यस सर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता तो रिटार्डेशन होगा ही नहीं, तो वर्ड ही नहीं आएगा रिटार्डेशन। इज दैट क्लियर? मतलब मैं ऐसा कहने की ट्राई कर रहा हूँ कि शायद सपोज कि आपको एमसीक्यू पूछा हुआ है और आपको रिटार्डेशन पूछा हुआ है, 2 ऑप्शन पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है, तो रिटार्डेशन को तो आपको पॉजिटिव ही लेना है, और एक्सेलरेशन अगर पूछा है और 2 ऑप्शन पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव लिखना है। इज दैट क्लियर? Yes sir. मतलब सर रिटार्डेशन हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। हमेशा की बात नहीं है, ये मोशन में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, राइट? तो ये मोशन जो है ना वो डिसेलरेटेड मोशन है, वी कैन से इट इज अ रिटार्डिंग मोशन। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछते हैं तो वो आपको नेगेटिव लिखना पड़ेगा, बट रिटार्डेशन वर्ड इटसेल्फ इंडिकेटिंग द नेगेटिव साइन इज इनसाइड द वर्ड, इनसाइड द वर्ड रिटार्डेशन इटसेल्फ। सो रिटार्डेशन अगर पूछते हैं तो आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ओके, या अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है हाउ मच टाइम इट विल टेक। तो अब टाइम फाइंड करना है। v is equal to v naught plus 80। आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर दो, कोई भी फॉर्मूला, मैं 3 हिसाब से टाइम फाइंड कर सकता, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करो। आप अप्लाई कर सकते हो v इक्वल्स टू v नॉट प्लस 80 अप्लाई कर सकते हो, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 35, एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो -3.062 3.0625। और टाइम फाइंड करना है। तो टाइम को सब जगह इक्वेशन बना दो तो 35/3.062 आ जाएगा। कितना मिलता है देखो, 35/2, 11.44। तो 11.44 सेकंड मिल जाएगा। यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग, यू कैन ऑल्सो v is equal to v इक्वल्स टू v नॉट प्लस v नॉट बाई टी। t। अब डिस्टेंस जो है वो 200 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, 0 plus इनिशियल वेलोसिटी 35 है, डिवाइड बाय 2 इनटू 2 t। into t। तो एक काम करो, 400 डिवाइड बाय 35 करो, 400 डिवाइड बाय 35, 11.5 ही आएगा सर। वो 11.4 ही आएगा, 44 ही आएगा। इज दैट क्लियर? या फिर आप ये भी कर सकते हो, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो आप ये इक्वेशन को भी सॉल्व करके टाइम फाइंड कर सकते हो, यू गेट द सेम आंसर, बट इसमें आपको फैक्टर्स लंबा हो जाएगा। सो यू कैन अप्लाई एनी ऑफ द फॉर्मूला। चलो अपार्ट फ्रॉम दैट कौस्तव ने स्टार्टिंग में बोला था कि भाई सर हम यहाँ पे स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला फाइंड अप्लाई नहीं कर सकते। यस यू कैन। स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? v नॉट स्क्वायर बाय, नॉट स्क्वायर 2/2। ओके। हाँ सर। तो यहाँ पे अगर आपको पता हो तो स्टॉपिंग डिस्टेंस के फॉर्मूला में ये जो a है ना वो ऑलरेडी रिटार्डेशन ही है। हमने याद करो स्टॉपिंग डिस्टेंस के फॉर्मूला डिराइव टाइम करते टाइम हमने एक्सेलरेशन को नेगेटिव करके ही लिया था। यस सर। तो ये Yes, sir. ये जो a मिलेगा वो रिटार्डेशन ही मिलेगा डायरेक्टली, ये डायरेक्टली मुझे रिटार्डेशन मिलेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी 35 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 into 200 तो कर दो तो आप लोग डायरेक्टली ये आंसर आ जाएगा। यस तो ऐसा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आया फ्रेंड्स आपको? Yes sir. yes sir. ओके, करण इज देयर? यस सर। इज इट अंडरस्टैंडेबल? सर
Are you understanding this question? Yes sir. Okay. सर ये लास्ट वाली सर पता नहीं चला मुझे, वो कौन सी फॉर्मूला थी? किसकी बात कर रहे हो? इसकी बात कर रहे हो आप? कौन बोल रहा है? किसने क्वेश्चन पूछा अभी? लास्ट वाला ये ds इक्वल्स टू हाँ, मतलब कौन कौन बोल रहा है? करण। करण, ये लास्ट लेक्चर आपने रिफर नहीं किया पूरा? उसमें लास्ट sir. लेक्चर में लास्ट टॉपिक यही था, स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला। सर मेरा 15 to 20 मिनट्स का सर लेफ्ट हो गया है, क्योंकि हाँ, तो दैट इज व्हाई आई हैड प्रिसाइजली टोल्ड यू दैट प्लीज डू दैट थिंग। मैंने 2 बार आपको व्हाट्सएप में भी भेजा और मैंने ओरली भी आपको बताया था। कोई बात नहीं, एक बार फिर देख लेना, वो आपको पता चल जाएगा। ओके सर। मैं है ये। ओके ओके सर। Okay, let's solve some more questions regarding on the same thing. Okay, कुछ constant acceleration वाले कोई क्वेश्चन हो तो अभी उसको सॉल्व करेंगे। सर बोलो। सर बोर्ड में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड वाले क्वेश्चन आते? बोर्ड में तो नहीं आते, बट जेडब्ल्यू में कभी कभी एक आध क्वेश्चन आ जाता है प्रैक्टिकल्स के बेस पे। सर वो जैसे इलेक्ट्रिक करंट वाला एक चैप्टर था, उसमें से अगर पूछते हैं कुछ वोल्ट मीटर का रीडिंग बताओ, कुछ ऐसा बताओ, ऐसा आता है प्रैक्टिकली पूरा? नहीं, बोर्ड में ऐसे नहीं, थ्योरी बेस पे आता, मतलब जो भी आपके कंटेंट है उसके बेस में आएंगे। ओके सर। फिर सर वो वर्नियर कैलिपर सर वो सब भी है ना हाँ, वो जो क्वेश्चन है वर्नियर कैलिपर्स उसके बेस पे हमारे चैप्टर में भी कुछ क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चन आ सकते हैं जो दिए हुए उस टाइप के क्वेश्चन। ओके सर। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन ध्यान से देखो आप। अ प्लेयर थ्रोज अ बॉल अपवर्ड with an initial speed 29.4 meter per second. What is the direction of acceleration during the upward motion of the ball? What are the velocity and acceleration of the ball at the highest point of the motion? चलो, सबसे पहले ये क्वेश्चन का आंसर दो मुझे कि यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि सर हाँ बोलो। सर 11 साइंस નો લેક્ચર નથી આજે? कौन છે? અનિરુદ્ધ. અનિરુદ્ધ, તમારે 8 o'clock લેક્ચર છે, 8 વાગે। ઓકે સર. WhatsApp માં મોકલેલા છે બધા। હા સર. Okay, so a player throws a ball upwards with an initial speed of a 29.4 meter per second. What is the direction of acceleration? चलो, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे दो। डाउनवर्ड। हाँ, थ्रू आउट द मोशन, चाहे ऑब्जेक्ट अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड जा रहा है, बट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो ऑलवेज कौन से तरफ लगता है? डाउनवर्ड। वो तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो ऑलवेज डाउनवर्ड तरफ, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, ऑलवेज। तो द फर्स्ट क्वेश्चन, द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ डाउनवर्ड। ओके, सेकंड क्वेश्चन। what are the velocity and acceleration of the ball at the highest point? चलो मुझे ये बताओ कि when the ball reaches to the maximum height, तो वो जब maximum height अचीव करेगा तो at that time उसका velocity क्या होगा? सर आपका वॉइस लैग हो रहा है। हीरो હીરો. हीरो।
when the object reaches to the maximum height, when the object reaches to the maximum height, the velocity becomes 0. But acceleration के बारे में क्या कह सकते हैं? वो equal to be the gravitation. Sir, equal to हाँ, gravity. equal to 9.8. Gravitational 9.8 acceleration. meter per second square. हाँ, तो चाहे भले ही ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट पे चला गया, भले ही उसका वेलोसिटी 0 हो गया, बट उसका एक्सेलरेशन तो 9.8 ही रहेगा थ्रू आउट द मोशन. In the throughout the motion, the acceleration remains the 9.8. तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर पता चला फ्रेंड्स? Yes, sir. Okay, so now one more question. Choose the x equals to 0 meter and t is equals to 0 second to be the location and time of the ball at its highest point. Vertically downward direction is to be considered the positive direction. Give the sign of the position, velocity and acceleration of the ball during the upward and downward motion. देखो ये थर्ड क्वेश्चन ट्रिकी है. यहाँ पे क्या पूछा है थर्ड क्वेश्चन में, आप ध्यान से सुन लो. थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखो. देखो थर्ड क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि चूज द x equals to 0 meter and t is equals to 0 second to be the location and the time of the ball at its highest point. मतलब यहाँ पे ऐसा है कि हाईएस्ट पॉइंट का लोकेशन है ना, वो हमको 0 लेना है. तो हाईएस्ट पॉइंट का लोकेशन यहाँ पे उसको मुझे x इज इक्वल्स टू 0 कंसिडर करना है. x इज इक्वल्स टू 0 कंसिडर करना है. एंड ऐसा दिया हुआ है कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी द पॉजिटिव. मतलब ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है उसको पॉजिटिव कंसिडर करना है. अब देखो इस क्वेश्चन में उन लोगों ने ऐसा बोला हुआ है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है. तो मतलब जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, जैसे जैसे वो नीचे आएगा तो उसका जो पोजीशन है यहाँ पे x इक्वल टू 0 है. तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जैसे वो नीचे आ रहा है तो उसका लोकेशन पॉजिटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ये यहाँ पे 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, एटसेट्रा. इज दैट क्लियर? सर ये फ्री फॉल जैसा ही हुआ ना? फ्री फॉल है. नहीं, फ्री फॉल की बात नहीं है. हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर, अभी दोनों केस हमको डिस्कस करना है. फ्री फॉल भी डिस्कस करना है एंड अपर डायरेक्शन का भी सोचना है. दोनों लिखा, देखो क्या लिखा हुआ है. ऐसा लिखा है कि द साइन ऑफ द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड एंड द डाउनवर्ड मोशन. तो पहले बॉल है ना अपर डायरेक्शन में जाएगा, मैक्सिमम हाइट अचीव करके वापस नीचे आएगा. तो मतलब अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन का मुझे सोचना है. बॉल को हम नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, तो पहले वो अपवर्ड जाएगा और फिर वो डाउनवर्ड आएगा. तो ये दोनों केस में मुझे एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का एंड पोजीशन का साइन फाइंड करना है. तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं है ना उसका मैक्सिमम हाइट फाइंड कर लेता हूँ. तो फ्रेंड्स एक एक्स्ट्रा काम करते हैं, पूछा नहीं है बट एक काम करते हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं, मैक्सिमम हाइट फाइंड कर लेते हैं. क्वेश्चन ऐसा होगा कि क्या कर क्या रहे, ये सब क्या हो क्या रहा है. तो आपको 5 मिनट में सारा चीज समझ में आ जाएगा. बट पहले मुझे मैक्सिमम हाइट फाइंड कर लेने दो. v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2ad, ये आपको पता है. इनिशियल वेलोसिटी कितने वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया था? आपके पास नोट्स है फ्रेंड्स? यस. इनिशियल वेलोसिटी कितना था? कौन से वेलोसिटी? 29.4 मीटर पर सेकंड. ओके. एंड मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी 0 होता है. इनिशियल 29.4 मीटर स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं
अब मैंने आपको बताया कि जब बॉडी ऊपर जाता है तो उसका वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, तो आपको एक्सेलरेशन नेगेटिव कंसीडर करना है एट ए टाइम ऑफ कैलकुलेशन, और डिस्टेंस आपको मतलब हाइट फाइंड करना है। तो मुझे ये बताओ कि ये 29.4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे नेगेटिव साइन हो जाए ना, वो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, और यहाँ पे 19.6 h आएगा। तो जो मैक्सिमम हाइट है वो आपको मिल जाएगा 29.4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 19.6। क्या मिलता है देखो ना, 44.1 44.1 मीटर। ओके फाइन, बट यहाँ पे पूरा उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, पूरा उल्टा पुल्टा दिया है, मतलब यहाँ पे मुझे जीरो लोकेशन अज्यूम करना है। उन लोगों ने ऐसा बोला हुआ है कि भाई जो मैक्सिमम हाइट का जो पॉइंट है ना उसको जीरो कंसीडर करना है, तो ओके वो लोग ने बोला तो करना पड़ेगा। तो कोई मुझे बोले बताएगा कि ये जो लोकेशन है वो कौन सा हो जाएगा, तो फिर ये ग्राउंड का फाइनल वो कितना होगा। इसको अगर मैं जीरो बोलता हूँ और नीचे की तरफ के 44.1 यहाँ पे आ जाएगा 44.1। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? Yes, यहाँ sir. पे लोकेशन कहीं पे 10 आएगा, यहाँ पे कहीं पे 20 आएगा, फिर यहाँ पे कहीं पे 30 आएगा, यहाँ पे कहीं पे 40 आएगा, और लास्ट में 44.1 आएगा ग्राउंड पे। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? Yes, sir. अच्छा चलो अब क्वेश्चन को पकड़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सोचना। पहले तो उन लोगों ने ऐसा बता दिया कि भाई x इज इक्वल टू 0 आपको कंसीडर करना है मैक्सिमम हाइट के लोकेशन को, तो मैंने वो कर दिया कि भाई मैक्सिमम हाइट के लोकेशन को मैंने 0 कर दिया, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है तो वो भी मैंने कर दिया। डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया, इसीलिए तो मैंने ये +10 +20 +30 +40 एंड +44.1 मीटर ऐसा लिख दिया। पॉजिटिव, डाउनवर्ड को पॉजिटिव करना था। अब क्या है, तो अब ये जो सी पोर्शन है, सी पोर्शन, उसमें केस 1 सी का केस 1 फाइंड करना है। साइन ऑफ, किसी का माइक चालू है, प्लीज स्विच ऑफ द माइक। तो केस 1 क्या है, तो आपको क्या करना है, वी वांट्स टू फाइंड द साइन ऑफ द पोजीशन, वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो पहले मैं है ना अपवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। चलो अपवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। चलो अपवर्ड डायरेक्शन में हम सोचते हैं, तो मुझे ये बताओ कि पोजीशन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? नेगेटिव। देखो नो डाउट पोजीशन डिक्रीज हो रहा है। जैसे यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया तो पहले पोजीशन 44.1 था, फिर 40 हुआ, 430 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 0 हो गया। मतलब डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बट कभी भी वो नेगेटिव है या नहीं है? देखो तो नहीं है, नहीं, नेगेटिव तो डिक्रीज, डेफिनेटली डिक्रीज हो रहा है, बट ऑल द टाइम पोजीशन जो है ना वो है तो पॉजिटिव। तो पोजीशन जो है एवरी टाइम द पोजीशन का जो साइन है वो पॉजिटिव ही रहेगा थ्रू आउट द अपर डायरेक्शन। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. चलो अब मुझे बताओ कि वेलोसिटी पॉजिटिव लेना चाहिए या नेगेटिव लेना चाहिए? पॉजिटिव। नेगेटिव रॉन्ग आएगा। आंसर, नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा? क्यों आएगा नेगेटिव? नेगेटिव आएगा ना सर, क्योंकि वो डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी। नहीं, डिक्रीज इंक्रीज की बात ही नहीं है। वेलोसिटी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? तो नेगेटिव इसलिए होगी बिकॉज हमको ये बोला गया है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव कंसीडर करना है, और अभी जो ऑब्जेक्ट जो जा रहा है वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो उसका जो मोशन है, उसका जो वेलोसिटी है वो अपवर्ड है, और हमको बोला गया है कि आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है ना उसको पॉजिटिव कंसीडर करना है। एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? अपवर्ड। सो अपवर्ड डायरेक्शन शुड बी कंसीडर्ड। Upward direction considered नेगेटिव is a negative here as per the question, and that is why the velocity being negative. चलो acceleration के बारे में बताओ। नेगेटिव Acceleration यहाँ पे पॉजिटिव ही होगा। पूछो क्यों? क्यों? मुझे ये बताओ कि
यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है ऐसा मत सोचो, मुझे ये बताओ कि एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में लग रहा है? upward, नहीं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन downward, throughout the motion of the body, throughout the motion, the gravitational acceleration acting in the downward direction, and the downward direction we already in the question is given that it should be considered as a positive. positive. positive, So as a gravitational acceleration is acting in the downward direction, सर अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया होता तो हम वो तो नेगेटिव ले हाँ तो लिया ना मैंने, यहाँ पे नेगेटिव ली थी। देखो आप देखो कैलकुलेशन करते टाइम मैंने नेगेटिव ही लिया है, देखो। यस सर। हाँ तो कैलकुलेशन करते टाइम तो नेगेटिव ही लेना पड़ेगा, बट ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? यस सर। इज अ पॉजिटिव। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। और तो ये केस 1 खत्म। हमने पोजीशन का वेलोसिटी का एंड एक्सेलरेशन का साइन निकाल दिया फॉर द केस 1। अब केस 2, अब किसकी बारे में डिस्कस करेंगे? अब downward direction, अब डाउनवर्ड मोशन की बात करेंगे। तो ऑब्जेक्ट अब नीचे जा रहा है, तो मुझे ये बताओ कि उसके जो लोकेशन है वो क्या कभी भी नेगेटिव हो रहा है? देखो तो not sir, अब ऑब्जेक्ट जीरो से स्टार्ट करेगा, बट उसके जो पोजीशंस है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेंगे, 0, 10, 20, 30। तो पोजीशंस थ्रू आउट द मोशन उसके पॉजिटिव ही रहेंगे। ओके, अब वेलोसिटी के बारे में क्या कह सकते हैं? positive, वो भी पॉजिटिव, बिकॉज ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन का वेलोसिटी, डाउनवर्ड डायरेक्शन हमको बोला गया है कि पॉजिटिव लेना है, तो वेलोसिटी को भी मुझे पॉजिटिव लेना पड़ेगा। एंड द थर्ड वन, एक्सेलरेशन के बारे में क्या कह सकते हैं? वो भी पॉजिटिव, बिकॉज वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्टिंग है। तो डाउनवर्ड मोशन में ऑल द 3 पैरामीटर विल बी पॉजिटिव। upward direction में positive, negative, positive, downward direction में all the 3 positive. Is it clear to you friends? Yes sir. Okay, so okay, और क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या देखते हैं? और क्वेश्चन नंबर डी क्या है? तो सी तो खत्म हो गया, अब डी के बारे में सोचते हैं। सी का आंसर देख लेते हैं, सी का आंसर क्या है देख लेते हैं। देखो सी में आंसर जो आ रहा है वो हमारा यहाँ पे मैच हो रहा है। देखो तो x पॉजिटिव, v नेगेटिव, a पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आ गया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब x पॉजिटिव, v पॉजिटिव, a पॉजिटिव, x पॉजिटिव, v पॉजिटिव, a पॉजिटिव। इज दैट क्लियर टू यू? यस आंसर यहाँ पे मैंने एक थोड़ा स्पेस दिया हुआ है, तो वो स्पेस पे आप क्या करोगे घर पे जाके, ये जो मैंने फिगर ड्रॉ किया है ना, ये जो मैंने फिगर ड्रॉ किया हुआ है वो यहाँ पे ड्रॉ कर देना। इज दैट ओके सर। मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा। तो आपको क्या करना है कि ये सी आपको पता कब चलेगा कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, तो ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड मैंने एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है, तो उसको ड्रॉ कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि पोजीशन क्यों पॉजिटिव है, पोजीशन को क्यों हम पॉजिटिव लेते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। अब क्वेश्चन नंबर डी भी है। क्वेश्चन नंबर डी क्या है? टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड? मतलब वो कितना मैक्सिमम हाइट। अब ये क्वेश्चन सी को भूल जाओ, क्वेश्चन सी के साइन कन्वेंशन को भूल जाओ, क्वेश्चन सी को और क्वेश्चन सी के साइन कन्वेंशन को भूल जाओ। अब डायरेक्टली अपने ओरिजिनल ट्रैक पे आ जाते हैं कि कितना हाइट वो अचीव करेगा और कितना टाइम के बाद वो वापस आएगा। तो कितना हाइट अचीव करेगा वो तो हमको पता चल गया, 44.1 ये तो हमको पता चल गया। ये एक्स्ट्रा नहीं है, मतलब ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर डी है।
इज इट ओके? Yes, sir. डी है, कितना हाइट अचीव करेगा वो तो पता चल गया, 44.1 मीटर जितना हाइट अचीव करेगा। इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. और ऐसा भी पूछा हुआ है कि कितना टाइम लगाएगा वो वापस से अपने हाथ पे आ जाए तो कितना टाइम। तो एक काम करते हैं, मैक्सिमम हाइट अचीव करने के लिए जो टाइम लगता है ना वो फाइंड कर लेते हैं और उसका डबल कर लेते हैं। क्या लॉजिक अप्लाई किया मैंने, पता चला आपको? Yes, sir. जितने टाइम के अंदर वो नीचे से ऊपर जाएगा उतने ही टाइम में वो ऊपर से वापस नीचे आ जाएगा। तो मतलब एक काम करते हैं, हम मैक्सिमम हाइट का जो टाइम है ना वो फाइंड कर लेते हैं और उसको फिर डबल कर देते हैं। तो मुझे टाइम फॉर द फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, मतलब कितने टाइम के बाद वो वापस अपने हाथ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट का टाइम अगर फाइंड करते हैं तो मुझे ये पता है कि मैक्सिमम हाइट में पहुंचने के बाद वो फाइनल वेलोसिटी 0 होता है। इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है कि 29.4 मीटर पर सेकंड है। एक्सेलरेशन शुड बी टेकन प्लस जी और माइनस जी। अभी ये भूल जाओ, ये सी वाला पोर्शन भूल जाओ। कैलकुलेशन के टाइम हमारा जो सोचना है वही सोचेंगे हम। और मुझे टाइम फाइंड करना है कोई फॉर्मूला इन दोनों इस सारे को लिंक करता हो ऐसा कोई? V is equal to V naught plus 80. V is equals to V naught plus 80। तो यहाँ पे इनिशियल फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल V naught, एक्सेलरेशन के बाद माइनस जी, और ये हो जाएगा टाइम फॉर द मैक्सिमम हाइट। तो फ्रेंड्स ये टाइम फॉर द मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला है, आप इसको एज अ शॉर्टकट याद रख सकते हो डायरेक्टली। और मैक्सिमम हाइट का भी शॉर्टकट फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो इसके ऊपर से, ये 19.6 जो है वो 2g है, 2 into g है, और ये नॉट स्क्वायर बाई 2g। देखो समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ये सारे शॉर्टकट्स आपको बहुत ही काम आएंगे। 3 शॉर्टकट आपको याद रखना है यहाँ पे, 3 शॉर्टकट। नंबर 1, मैक्सिमम हाइट का टाइम कितना, तो v नॉट बाई जी। नंबर 2, मैक्सिमम हाइट इटसेल्फ इज व्हाट, तो ये हो जाएगा v नॉट स्क्वायर बाई 2g। और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो जो मैक्सिमम टाइम का जो है हाइट का, मैक्सिमम हाइट का जो टाइम है उसको डबल करना पड़ेगा, तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। इक्वेशन आपको एज अ शॉर्टकट याद रखना है, बहुत काम आएगा। मतलब आपको जस्ट अगर इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, ऑनली इनिशियल वेलोसिटी, जी का तो वैल्यू आपको पता है 9.8 है, तो जस्ट अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, कौन से वेलोसिटी थ्रो किया, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको मैक्सिमम हाइट ऑन द स्पॉट मिल जाएगा, आपको टाइम हाइट ऑन द स्पॉट मिल जाएगा, एंड आपको टाइम ऑफ फ्लाइट भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट बोलो, इसमें साइन डिपेंड नहीं करती? नहीं, मैंने बताया ना कि कैलकुलेशन टाइम का, मैंने पहले एक बार फिर से मैं एकदम क्लियरली बोल देता हूँ कि कैलकुलेशन करते टाइम जो मैंने बताया आपको वही सोचना है। अगर स्पीड बढ़ रही है तो वेलोसिटी, अगर स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव लो, अगर स्पीड डिक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव लो, दैट्स इट। अगर स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, अगर स्पीड डिक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। वो कैलकुलेशन करते टाइम आपको ये करना है। बट अगर साइन का पूछा है पर्टिकुलरली कि भाई कोई डायरेक्शन पॉजिटिव है या कोई ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो ये केस नंबर सी देख लो। तो केस नंबर सी देख लो। यस ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी 29.4 डिवाइड बाय 9.8। चलो मुझे बताओ ये क्या आंसर आ रहा है? 3 क्या आ रहा है? 3 अच्छा 3 into 2 करना पड़ेगा बाद में। नहीं, वी नॉट बाई जी 3 आ रहा है क्या? हाँ, वी नॉट हाँ, बाई जी yes. 3 आ रहा है। हाँ, तो ये 6 आ जाएगा, तो ये 6 सेकंड आएगा। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? Yes, sir. यहाँ पे 3 शॉर्टकट मिले, मैक्सिमम हाइट का, टाइम फॉर द मैक्सिमम हाइट, एंड टाइम ऑफ द फ्लाइट, पूरे फ्लाइट का टाइम, ये शॉर्टकट मिला। तो यहाँ पे डी में क्या पूछा था, तो कौन से हाइट तक वो राइज करेगा वो पूछा था, एंड ऐसा भी पूछा था कि हाउ मच इट विल टेक टू कम टू द हैंड, तो ये 6 सेकंड आंसर आएगा। तो क्या फ्रेंड्स आपको ये पता चला पूरा क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर। इसका स्क्रीनशॉट मैं भेज दूंगा आपको। तो अगर कुछ कहीं पे अगर आपको ऐसा लगता है कि देखना है, सोचना है, तो सोच लेना। बट मैं आपको एक बार क्लियरली बोल देता हूँ कि कैलकुलेशन जब आप करते हो तो ऐसा ही सोचना है कि अगर
वेलोसिटी स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, अगर स्पीड डिक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, वही सोचना है आपको। बट पर्टिकुलरली कभी भी आपको साइन पूछे और ऐसा दिया हुआ है कि भाई अपर डायरेक्शन पॉजिटिव लो या डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लो, तो ये केस नंबर सी आप देख लो, केस नंबर सी देख लो, तो इस हिसाब से सोचना है। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, तो इसको मैं निकाल रहा हूं अभी, तो देख लेते हैं क्या सॉल्यूशन बराबर है कि नहीं। देखो डी में क्या किया है, पहले मैक्सिमम हाइट फाइंड किया, उसमें देखो एक्सेलरेशन -9.8 लिया, देखा मैंने बोला ऐसे ही, और टाइम फॉर द मैक्सिमम हाइट फाइंड कर दिया, उसका डबल कर दिया, और उसके बाद मैंने शॉर्टकट भी लिख के दिया, देखो तीनों शॉर्टकट मैंने लिख के दिया। इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। यस सर। तो ये क्या समझ में आया आपको? यस। ओके फाइन। ओके, ओके, लेट्स सॉल्व वन टफ क्वेश्चन। अब एक टफ क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, लेट्स सी हाउ यू विल एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो एक काम करते हैं, वो टफ क्वेश्चन लेते हैं, बट उसके पहले थोड़े एमसीक्यूज हम सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद वो टफ क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। अच्छा, तो फ्रेंड्स हमने ये नोट्स में से कुछ तो एमसीक्यू सॉल्व किए। अच्छा मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको देख लो। An object is thrown in the vertically upper direction. Which of the following is the velocity versus time graph? ऑब्जेक्ट को मैंने वर्टिकली अपर डायरेक्शन में थ्रो किया है, तो वेलोसिटी टाइम के साथ कैसा चेंज होगा वेलोसिटी का, वो क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपर डायरेक्शन में थ्रो किया है, तो वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज होगा, वो क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स सोचो, चलो कोई ऑब्जेक्ट को मैंने वर्टिकली थ्रो किया हुआ है, तो जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, जैसे टाइम पास होगा, तो उसका वेलोसिटी के बारे में क्या कह सकते हैं, बोलो, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज। डिक्रीज। तो हाँ ऑब्वियसली, और जो ग्राफ है ना, डाउनवर्ड स्लोप होगा। हाँ डाउनवर्ड। ये डाउनवर्ड, तो देखो यहाँ पे कुछ टाइम के बाद उसका वेलोसिटी 0 हो गया, देखो वेलोसिटी डिक्रीज, और ये स्ट्रेट लाइन आएगा भैया। क्यों स्ट्रेट लाइन आएगा? ये स्ट्रेट लाइन क्यों आएगा? वर्टिकल। हाँ, ये जो मोशन है ना, उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वो कांस्टेंट है, एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन के हर एक केस में वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होता है। चलो अब क्या होगा, अब मुझे बताओ, चलो यहाँ पे मतलब ऑब्जेक्ट, कोई मुझे बताएगा यहाँ पे ये ग्राफ यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कोई वेलोसिटी जीरो हो गई है। जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी 0 हो रहा है, अब क्या होगा, सोचो अब क्या होगा? वापस से सर इंक्रीज होगी। वेलोसिटी इंक्रीज होगा, बट कौन सा डायरेक्शन में इंक्रीज होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, अब वापस से इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, बट वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी 0। तो वापस से वो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, बट वो अब नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, देखो। इज दैट क्लियर टू यू? तो पहले कुछ 50, 40, 30, 20, 10, 0, -10, -20, -30, -40, -50। इज दैट क्लियर टू यू? तो पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, बट अगर वेलोसिटी के बदले इन प्लेस ऑफ वेलोसिटी इज द वर्ड इज स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, तो क्या होता, सोचो। वेलोसिटी नहीं दिया है, स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, तो ग्राफ कैसा मिलता? सर और एक बार समझाओगे वेलोसिटी में? हाँ, वापिस ऊपर जाएगा सर। मिस्टर अरगम, अरगम
अरगम। सर वो गलती से कॉपी पेस्ट हो गया, पुराना मैसेज था। हाँ, गलती से कॉपी पेस्ट हो गया था, पुराना मैसेज था वो। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ सर, सब कुछ आ रहा है, गलती से कॉपी पेस्ट हो गया था, पुराना वाला है। अच्छा, तो देखो फ्रेंड्स, वेलोसिटी में क्या होता है, मैंने ऑब्जेक्ट को ऊपर की साइड थ्रो किया, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो उसका स्पीड मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, बट उसका पॉजिटिव वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। मैक्सिमम हाइट पे वो स्टॉप हो गया, मतलब वेलोसिटी जीरो। अब वापस से टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ेगा, बट अब वो नीचे आ रहा है, मतलब उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन नेगेटिव है, मतलब अब नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज हो गया। तो ये ग्राफ हो गया वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। अब मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि इसी क्वेश्चन पे अगर वेलोसिटी वर्ड के बदले स्पीड वर्ड लिखा होता तो क्या आंसर आता, तो ग्राफ मुझे कैसा मिलता? सर सो वी टाइप मिलता। हाँ एग्जैक्टली, कौन बोला? वत्सल। हाँ वत्सल, यू गिव द परफेक्ट आंसर। तो हमको ऐसा ग्राफ मिलता, बिकॉज वेलोसिटी तो नेगेटिव होता है बट स्पीड नेवर नेगेटिव। तो स्पीड क्या होता है कि भाई टाइम के साथ पहले स्पीड डिक्रीज हुआ, जीरो हो गया, फिर वापस से उसका स्पीड बढ़ता गया, बट स्पीड नेगेटिव नहीं होता है, तो उसमें डायरेक्शन का कोई मायने नहीं रखता है, वो नेगेटिव होता ही नहीं है। तो अगर स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ होता तो आपको ऐसा मिलता, अगर स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ होता तो आपको ऐसा मिलता, और अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है तो आपको ऐसा मिलता। ये रहा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और फ्रेंड्स, यू विल बी सरप्राइज बाय नोइंग दैट ये क्वेश्चन जेडब्ल्यू के एग्जाम में 2 बार पूछा है। एक बार 2015 या 16 में पूछा, और अभी 2019 में भी ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन वापस से पूछा जेडब्ल्यू। तो ऑप्शन ए भी आ सकता है, ऑप्शन डी भी आ सकता है, ऑप्शन ए कब आएगा? स्पीड वर्सेस टाइम में। हाँ, स्पीड वर्सेस टाइम अगर होता तो ऑप्शन ए आता, स्पीड वर्सेस टाइम के बारे में होता तो। मतलब अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम है तो ऑप्शन डी आएगा, स्पीड वर्सेस टाइम है तो ऑप्शन ए आएगा। इज इट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? यस सर। ओके, चलो मुझे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दो। अ बॉल इज थ्रोन इन द वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन नेग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस। Acceleration of the ball when it is acceleration of the ball in air will be, तो बताओ क्या आंसर आना चाहिए? कांस्टेंट ही आएगा ना सर, एक्सीलरेशन होगी। बी। परफेक्ट आंसर, कांस्टेंट ही आएगा, बिकॉज थ्रू आउट द मोशन, हाँ थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट। वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। ओके, 9, 10, 11, 12, 13, 14 करवा दिया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। चलो, an object is allowed to fall freely from a cliff when it travel a distance h, its velocity is v, hence in the traveling further distance of how much its velocity becomes 2v। तो क्लिप क्या है? मतलब कोई 4v। हाँ कोई फोर वी। हाँ कोई सपोर्ट है जहां से ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करवा रहा है। क्या बोले आप, क्या बोले? 4v। 4h ए आएगा। 4h। अच्छा, आंसर की बात कर रहे हो? नहीं 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 नहीं, आंसर तो बात की बात है। बट यहाँ पे कोई क्लिफ है। क्लिफ का मतलब क्या पता है आपको? जैसे वो स्विमर है ना, स्विमर, तो जहां से वो डाई लगाता है ना उसको क्लिफ बोलते हैं। समझे आप? यस सर। ओके, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कोई सपोर्ट मतलब क्लिफ से उसको फ्री फॉल करवा रहा है, तो मतलब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे उसका वेलोसिटी कितना होगा? 0। अब ऐसा दिया हुआ है कि अगर वो h जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है
तो वेलोसिटी उसका v हो रहा है। और अब ऐसा क्वेश्चन है कि कितना और ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल, पर हाउ मच द फर्दर डिस्प्लेसमेंट, अज्यूम दैट इट इज h डैश। तो ये h डैश का वैल्यू कितना है वो मुझे फाइंड करना है, सो दैट द वेलोसिटी बिकम्स डबल्ड। चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में किसका मतलब कौन से क्वांटिटी की बात ही नहीं है? टाइम। टाइम नहीं दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया हुआ है। तो पहले केस 1 के लिए, अज्यूमिंग दिस इज द केस 1, तो पहले मुझे ये बताओ कि टाइम नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? v square V minus square v minus naught square equal to 2 AD। तो v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2AD। चलो पहले केस 1, मतलब यहाँ से यहाँ पे आ रहा है केस 1, इसको मैं केस 1 अज्यूम कर रहा हूँ और इसको मैं केस 2 अज्यूम कर रहा हूँ। तो पहले केस 1 की बात करते हैं। तो केस 1 में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी v है। केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल v है। minus v तो square हाँ, v स्क्वायर ही है, इनिशियल 0 है। चलो एक्सेलरेशन शुड बी टेकन प्लस g और माइनस g। +g प्लस जी बिकॉज वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। एंड डिस्टेंस कितना है केस 1 में? h h। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh gh, इक्वेशन नंबर 1। अब फ्रेंड्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड देख लो, केस नंबर 2 की बात है। वापस से मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AD वंस अगेन। बट अब मुझे ये बता दो कि केस 2 में हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं या यहाँ पे एंड हो रहा है? मतलब केस 1 का जो एंड है वो केस 2 का स्टार्टिंग है। तो अब मुझे बताओ केस 2 में फाइनल वेलोसिटी कौन सा है? 2V। तो फाइनल वेलोसिटी 2v है, तो 2v द होल स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितना है केस 2 का? V। v स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या लूं? पॉजिटिव प्लस जी। और डी कितना लूं? h dash h डैश। तो 2v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, 2v। अच्छा, किसी के वहां पे माइक चालू है, प्लीज स्विच ऑफ द माइक। मतलब घर में क्या हो रहा है वो पता चल जाएगा अभी। तो ये 2v द होल स्क्वायर क्या होगा? 4v square minus v square 4v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh डैश। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? yes yes sir तो ये क्या होगा? 3v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh डैश हो जाएगा। yes sir बट फ्रेंड्स v स्क्वायर तो क्या है? 2G। 2g सो 2g गेट कैंसल्ड। 2g वन हो जाएगा। अब कौन बोल रहा था कि 4h आंसर आएगा? देखो, 3h 3h तो 3h इज द राइट आंसर। तो क्या ये समझ में आया फ्रेंड्स? yes sir yes sir ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको, थोड़ा लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा शांति से काम करना पड़ेगा आपको, मजा आएगा। उसके बाद थोड़ा स्टार्टिंग में इनिशियली आपको थोड़ा टफ लगेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, बट एक बार ये ग्रिप आ जाएगा तो बहुत ही मजा आ जाएगा। तो क्या ये समझ में आया फ्रेंड्स ये कैसे सॉल्व होता है? आपको क्या करना है, और एक चीज बताऊं मैं आपको कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, तो आप उसको फिगर बना लो एक बार, उसका फिगर मतलब उसको कुछ फिगर बना लो। जैसे मैंने ये फिगर बना दिया, देखो। तो फिगर बनाने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे केस 1 करेंगे, केस 2 करेंगे और ऐसे सोल्व हो जाएगा। तो ऐसे आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या करना है। तो जो क्वेश्चन है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली एक बार फिगर बनाने का ट्राई करो, तो उसके बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या करना है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? yes sir yes sir Okay. So let's solve that question I am talking about. तो एक अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा टफ है। तो अब वो हम सॉल्व करेंगे। देख लो क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ लो क्वेश्चन क्या है। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 27 की मैं बात कर रहा हूँ। द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ of a particle moving along a fixed direction is shown in the figure। मतलब वेलोसिटी वर्सेस स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। ऑब्टेन द डिस्टेंस ट्रांसवर्स दैट इज ट्रैवल्ड
in the 0 to 10 second and 2 to 6 second. तो हमको यहाँ पे पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है और मुझे यहाँ पे फाइंड करना है, पहला क्वेश्चन हमको डिस्टेंस फाइंड करना है दोनों केस में. इन द केस नंबर 1 आई वांट टू फाइंड द डिस्टेंस. In the case 1, I want to find the distance in 0 to 10 second and in the case 2, 2 to 6 second. तो ये हमारा क्वेश्चन है. तो पहले 0 to 10 सेकंड के लिए मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है और सेकंड केस में मुझे करना है 2 to 6 सेकंड के लिए. और उसमें ऐसा भी पूछा हुआ है ऑल्सो कैलकुलेट द स्पीड. तो स्पीड तो मिल जाएगा, स्पीड में तो कुछ भी नहीं है, एवरेज स्पीड तो मिल जाएगा. बिकॉज एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है भैया? हाँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो एक बार डिस्टेंस मिल जाएगा, एक बार अगर डिस्टेंस मिल जाएगा तो आपको एवरेज स्पीड तो मिल ही जाएगा बिकॉज टाइम ड्यूरेशन तो दिया हुआ है दोनों केस का. चलो सबसे पहले मैं केस 1 सॉल्व करता हूं. यहाँ पे केस 1 जो टाइम ड्यूरेशन 0 to 10 सेकंड की बात है, तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो ऑन द स्पॉट सोल्व हो जाएगा. कोई मुझे बताएगा कैसे सोल्व होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल. क्या आपको ये पता है ये? यस सर पता है. यस सर. तो केस 1 का तो इजीली आपको मिल जाएगा कि 0 to 10 सेकंड में कितना मतलब डिस्टेंस ट्रैवल होगा. तो उसका एरिया 0 to 10 सेकंड तक का एरिया फाइंड कर दो. तो 0 to 10 सेकंड वाला जितना भी एरिया है वो फाइंड कर दो, तो वो तो आपको ट्रायंगल मिलेगा. तो जस्ट यू गेट आंसर हाफ इनटू बेस क्या है, बेस 10 है 10. एंड अल्टीट्यूड क्या है 12 है, हाइट 12 है. क्या आंसर आएगा? 60. बट अब प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ. केस नंबर 2 में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. केस 2 में बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है. अब यहाँ पे मुझे पूछा है कि 2 सेकंड से स्टार्ट करके आपको 6 सेकंड तक सोचना है. तो अब ये एरिया फाइंड करने वाला जो बात है ना, वो दिमाग में नहीं जाएगा. पूछो क्यों? क्यों सर? यहाँ पे कहीं पे 2 सेकंड आएगा और यहाँ पे कहीं पे 6 सेकंड आएगा. तो अब आपका जो एरिया होगा ना वो कुछ टेढ़ा मेढ़ा होगा. अब एरिया जो होगा वो ये जो है ना, वो इतना एरिया आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. इतना आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इतना. 2 सेकंड से 6 सेकंड मतलब इतना को. तो क्या इस टाइप का एरिया आप कैलकुलेट कर पाओगे? नो. सो ये टेढ़ा मेढ़ा होगा. देखो बीच में से डिवाइड करके ट्रायंगल और स्क्वायर नहीं बना सकते. अच्छा, एक बंदे ने ऐसा बोला कि सर हम ट्रायंगल एंड स्क्वायर बनाएंगे, बीच में से डिवाइड कर देंगे. अच्छा डिवाइड करना है, करो. चलो यहाँ से करते हैं. नहीं सर, माइनस करेंगे. ये कितने पार्ट में डिवाइड करोगे? देखो आप, बहुत टिपिकल. सर बोलो. इंटीग्रेशन करेंगे. नहीं, इंटीग्रेशन की तो बात ही नहीं है, वो तो अभी पढ़ाया भी नहीं है ना. तो अब एक काम करते हैं. देखो ये एरिया फाइंड करना अभी मतलब प्रॉब्लमेटिक है. आपको देखो, अब मैंने बताया कि 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा आपको एरिया को, और तो भी वो फाइंड तो नहीं कर पाओगे बिकॉज आपके पास उसका वैल्यू तो है ही नहीं है आपके पास. हाइट और चार पार्ट के लिए हाइट और लेंथ तो आपके पास नहीं है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है. एरिया से फाइंड करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, फाइंड नहीं होगा. यहाँ पे कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा. सर स्लोप ले लेंगे ओए का. हाँ, अच्छा स्लोप ले लेंगे. तो पहले मुझे बताएगा कि स्लोप मुझे यहाँ पे क्या देता है? एवरेज एक्सेलरेशन. एग्जैक्टली. एवरेज एक्सेलरेशन. तो फॉर द ड्यूरेशन, मेरी बात ध्यान से सुनना, फॉर द ड्यूरेशन 0 to 5 सेकेंड द एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वो हमको कैसे मिलेगा? दैट इज इक्वल टू स्लोप, दैट इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी. तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है 0 to 5 सेकेंड में? 12. देखो इनिशियल 0 है, फाइनल 12 है.
तो 12 माइनस 0 अपॉन द टाइम इंटरवल इज 5। तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो मुझे ये पता चल गया कि 0 to 5 सेकंड में जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना वो 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। चलो इतना तो पता चला कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना है 0 to 5 सेकंड में। बट अब हमारा टारगेट जो है ना वो तो ये है कि 2 सेकंड से स्टार्ट करके 6 सेकंड तक फाइंड करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं है ना 0 to 5 सेकंड का डिस्टेंस फाइंड कर लेता हूँ एंड 0 to 2 सेकंड का फाइंड कर लेता हूँ, और तो वो 5 सेकंड के डिस्टेंस में से 2 सेकंड का डिवाइड कर मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो तो मुझे क्या मिल जाएगा? 2 से 5 3 का सेकंड का 3 हाँ तो सेकंड 2 to 5 सेकंड का मिल जाएगा, 2 to 5 सेकंड का। यस हाँ yes sir 2 to 5 का मिल जाएगा। अच्छा सर फीचर्स हम लोग नहीं पता चला ये हाँ अभी मैं distance लिख रहा वाला। हूँ। अरे अभी से पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। डिस्टेंस फॉर 0 to 5 सेकेंड्स, तो उसको मैं x1 बोलता हूँ। तो x1 इज इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला है VOT प्लस हाफ AT स्क्वायर। चलो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन हमारे पास है 2.4 एंड जो टाइम है वो 5 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 1.2। करो तो क्या होता है 2.4 डिवाइड बाई 2 1.2 इंटू 25। तो 25 इंटू 1.2 क्या होता है, करो तो 30। तो ये 30 मीटर। तो अभी तो मैं ये मुझे एक में क्या मिला 0 to 5 सेकंड का। अब मैं क्या करूंगा पता है, डिस्टेंस फॉर 0 to 2 सेकंड। अब मैं ये फाइंड करूंगा 0 to 2 सेकंड का फाइंड करूंगा, उसको मैं x2 बोलूंगा। वापस से VOT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इनिशियल वापस से 0 2.4। अब t स्क्वायर के बदले मैं क्या लिखूंगा 3 स्क्वायर 0 to 2 सॉरी 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर बिकॉज 2 सेकंड तक फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 4.8। इज दैट क्लियर? तो अब इसके द्वारा मुझे क्या मिलेगा, मैंने 0 to 5 का फाइंड किया, 0 to 2 का फाइंड किया, तो इसके द्वारा मुझे क्या मिल जाएगा 2 से 5 का हाँ डिस्टेंस और 2 सेकंड टू 5 सेकंड। तो उसको मैं D1 बोलता हूं। तो D1 इज इक्वल टू x1 माइनस x2 कर दो, माइनस 4.8 कर दो, 25 तो ये आ जाएगा 25.2 मीटर। अब एक बंदे ने मुझे पूछा था कि सर आप डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला 2 to 5 सेकंड के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते VOT प्लस हाफ AT स्क्वायर। चलो कोई मुझे बताएगा मैं डायरेक्टली ये 2 to 5 सेकंड के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, क्यों? मुझे कोई बताएगा व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? मैं ये जो फॉर्मूला है D is equals to VOT plus half AT square, I cannot apply directly for the T is equals to 2 second to 5 second। मैं ये नहीं अप्लाई कर सकता। कोई मुझे बताएगा क्यों नहीं अप्लाई कर सकते ये फॉर्मूला? सर स्लोप मिलेगा ही नहीं प्रॉपरली, वो प्रॉब्लम ये एंगल है भी नहीं कि मिलेगा। नहीं प्रॉब्लम इनिशियल वेलोसिटी का है। तो जब आप 2 to 5 सेकंड करते हो तो आपका इनिशियल इंस्टेंस कौन सा हो गया 2 सेकंड। तो क्या आपको पता है कि 2 सेकंड पे कितना वेलोसिटी है? नो सर नहीं पता है हमको। वेलोसिटी 0 सेकंड पे वेलोसिटी 0 है इतना पता है, 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितना है वो पता ही नहीं है। तो इसके वजह से हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज अगर हम 2 to 5 सेकंड का सोचते हैं तो इनिशियल इंस्टेंस हमारे लिए 2 सेकंड हो जाएगा। अगर हाँ बोलो सर ये डिस्टेंस फॉर 2 सेकंड टू 5 सेकंड वापस समझाओ ना। अरे मैंने क्या किया 0 to 5 सेकंड का फाइंड कर दिया, 0 to 5 सेकंड का फाइंड कर दिया, 0 to 2 सेकंड का फाइंड कर दिया और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मुझे 2 to 5 सेकंड मिल जाएगा ना, उसमें क्या है। ओके तो उसके लिए दोनों में से फॉर्मूला सेम अप्लाई किया। पहले 0 to 5 सेकंड में मतलब 5 प्लेस किया, 2 सेकंड में 2 प्लेस किया और दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो 2। अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि मैं डायरेक्टली 2 to 5 सेकंड का फाइंड नहीं कर सकता, बिकॉज अगर मुझे डायरेक्टली 2 to 5 सेकंड का फाइंड करना है तो उसके लिए मेरे पास 2 सेकंड पे कितना वेलोसिटी है वो मुझे पता होना चाहिए, और वो हमारे पास नहीं है। 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितना है वो पता नहीं है, तो हम इनिशियल इंस्टेंस को 2 सेकंड नहीं ले सकते हैं, बिकॉज 2 सेकंड पे मुझे वेलोसिटी ही पता नहीं है। तो इसके वजह से मैं इनिशियल इंस्टेंस को 2 सेकंड में
कंसीडर नहीं कर सकता हूं, तो मुझे कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा? मुझे 0 से करना पड़ेगा, 0 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, 0 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज 0 सेकंड पे मुझे पता है कि 0 सेकंड पे वेलोसिटी 0 है, ऐसा मुझे पता है। ओके, चलो अब क्या बचा? मुझे 2 to 5 सेकंड का तो मिल गया, अब मुझे क्या करना चाहिए? 5 to 6 सेकंड। 5 to Perfect. 6 to 6 अब मुझे seconds. करना पड़ेगा 5 to 6 सेकंड का। तो 5 to 6 सेकंड का कैसे करेंगे? तो सर 5 to 10 का फाइन कर लेंगे, उसमें हाँ से 6 परफेक्ट। to तो 10 का सबसे माइनस। एक काम करते हैं, पहले हम एक एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। फॉर द t इज इक्वल्स टू 5 सेकंड टू t इज इक्वल्स टू 10 सेकंड, उसका एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन उसका फाइंड कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब मुझे बताओ चेंज इन वेलोसिटी क्या आ रहा है? देखो 5 सेकंड पे वेलोसिटी 10 है, 10 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हो गया, 5 सेकंड पे वेलोसिटी 12 है, और 12 से स्टार्ट होके 0 हो गया। तो व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? -12। -12। वेरी गुड। कौन बोला? हिट। हाँ, फाइनल 0 वेलोसिटी। देखो टाइम 10 हो रहा है बट वेलोसिटी तो 0 हो रहा है, वेलोसिटी तो 0 हो रहा है। तो वेलोसिटी फाइनल 0, इनिशियल 12, तो 0 - 12 अपॉन टाइम इंटरवल कितना है? 5 seconds. -5 तो Second. 5। तो इसका आंसर आ जाएगा -2.4। और ये माइनस आए वो ऑब्वियस है, पूछो क्यों? वेलोसिटी क्यों? डिक्रीज हो रहा है। इसका Downward है ना? स्लोप पॉजिटिव है। देखो इसका स्लोप पॉजिटिव है, एक्सेंडिंग लाइन है, तो इसका स्लोप आप देख सकते हो कि नेगेटिव है, डिसेंडिंग लाइन है। तो 0 to 5 सेकंड में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, स्पीड बढ़ रही है, बट 5 to 10 सेकंड में स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। चलो अब हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। अब हम डायरेक्टली डिस्टेंस फॉर 5 सेकंड टू 6 सेकंड, मतलब टाइम इंटरवल कितना हुआ? 1 second. हाँ 1 सेकंड। तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं VOT प्लस हाफ AT स्क्वायर। बट हमारे लिए इनिशियल इंस्टेंट कौन सा हो गया? अभी इनिशियल इंस्टेंस कौन सा हो गया? 5 second. 5 और वो सेकंड। 5 सेकंड पे क्या आपके पास वेलोसिटी है? क्या है वेलोसिटी? 12 yes. तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 12 है। टाइम इंटरवल कितना लूं? 0 1 सेकंड 1 सेकंड। प्लस हाफ। एक्सेलरेशन क्या लूं? -2.4। इंटू 1 स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आया आपको? Yes sir. 5 to 6 सेकंड का मतलब टाइम इंटरवल हो गया 1 सेकंड का, और इनिशियल वेलोसिटी मतलब 5 सेकंड पे वेलोसिटी। तो 5 सेकंड पे वेलोसिटी हमको पता है कि 12 है, तो इनिशियल वेलोसिटी भी है, टाइम भी है, एक्सेलरेशन भी है। तो ये आ जाएगा 12 - 1.2। तो ये दूसरा वाला जो डिस्टेंस है वो मिल जाएगा आपको 10.8 मीटर। तो अब फ्रेंड्स मेरे पास 2 to 5 सेकंड का भी है एंड 5 to 6 सेकंड का भी है। तो क्या हम ऐड कर देंगे। इसको ऐड कर देंगे। देखो 36 आप है ना, अब ये प्योर साइंस एकदम हाई लेवल पे आ गए हो आप। ये साइंस का प्योर साइंस का हाई लेवल आ गया है ये क्वेश्चन में। तो इतने लेवल तक 12th स्टैंडर्ड में आप इतने लेवल तक जाओगे, थोड़ा इससे भी थोड़ा ज्यादा लेवल है। मतलब ये पूरा साइंस का अप लेवल जो बोलते हैं ना, वो लेवल आ गया अभी। तो ये इन दोनों को अब जो मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा? डिस्टेंस फॉर 2 सेकंड टू 6 सेकंड मिल जाएगा। तो पहले 2 to 5 सेकंड का क्या मिला था? 25.2 मिला था, और अब क्या मिला? 10.8 मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? 36 मीटर। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो क्या ये समझ में आया फ्रेंड्स? yes sir. So it is a up level. Is it okay? yes sir. फ्रेंड्स तो अभी आज का जो सेशन है वो यहाँ तक रखना है। तो आज मैंने बहुत ही मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराए हैं आपको। इसको रिवाइज करना पड़ेगा आपको। एक बार मैं रात को 10-11 बजे ये यूट्यूब लिंक मैं आपको भेज दूंगा। एक बार रिवाइज करना, एक बार नोट पेन लेके आप खुद एक बार ट्राई करना, कंपलसरी ये काम करना, तो आपको इसमें मतलब समझ में आ जाएगा, आपको मजा भी आएगा।
ये आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा अप लेवल का है। ये 12th साइंस, मतलब आप साइंस के लेवल पे आ गए हो अभी, पर थोड़ा सोचना, थोड़ा ट्राई करना और रिवाइज करना तो काम हो जाएगा। अब रही बात सैटरडे की, तो सैटरडे को किसको प्रॉब्लम है? स्कूल में एग्जाम, स्कूल में कुछ लेक्चर्स, अभी तो स्कूल खत्म हो गया ना, कि चालू है अभी? कोई मैसेज नहीं आया सर अभी तक। किसी का स्कूल का था, मुझे उसी का हाँ किसने बताया था ये स्कूल? सर Saturday वत्सल का। वत्सल बोलो। सर सैटरडे 12 o'clock से 12:50 तक है। तो क्या स्कूल चालू है आपका? अभी तो कह रहे हैं कि ये वीक के लिए तो नहीं चालू ऑनलाइन। हाँ, तो अभी तो ये सैटरडे तो चालू नहीं है ना, हाँ तो वी विल कंटिन्यू विद द सेम टाइम। तो सैटरडे का आपका जो टाइम है वो सेम रहेगा। कौन सा टाइम है सैटरडे का? 12 o'clock. 9:30 to 12. हाँ, तो 12 o'clock का जो टाइम है वो सेम रहेगा। ओके, 12:30 या Yes. 12 sir. 12 to 1:30. 12 to 1:30? ओके, तो ये टाइम जो है वो एज पर द शेड्यूल रहेगा सैटरडे को। और आप आज का लेक्चर एक बार शांति से बैठ के 1-2 घंटा दे के शांति से कर लेना। संडे को आपका वापस से एग्जाम भी होगा और आपका JEE का लेक्चर भी होगा। तो आज का सेशन मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू, Bye sir. बाय। सर होमवर्क भेज देंगे ना? वो सब मैं व्हाट्सएप में भेज दूंगा अभी।